Good evening and a warm welcome to our esteemed guests and participants. I am Mitali Gupta representing the Indian Association for Muscular Dystrophy, and it's a truly an honor to have all of you with us today at this significant scientific conference on muscular dystrophy. I am delighted to introduce our special guest, Dr. Shefali Gulati. Dr. Gulati is a professor and a chief of the Child Neurology Division at AIMS in New Delhi. She has made significant contributions to various areas of pediatric neurology, including developmental disabilities, neurometabolic disorders, and neuromuscular disorders. With a wealth of experience and expertise, Dr. Gulati's insights are invaluable to our conference today. Please join me in welcoming Dr. Shifali Gulati. We all welcome you, ma'am. Thank you for having me over. Ma'am, Yeah, yours is the first presentation. Yes. okay. Yeah. So I wanted to, you want me making me present some slides? Then I'll just give me a minute, huh? What is the diagnosis? कैसे हो सकता है? Genetic testing कहाँ पे हो सकता है? Genetic testing से क्या फायदा हो सकता है? और genetic testing कहाँ कराते हैं? All of these genetic testing के related questions can be asked, can be discussed. फिर should we take steroids? And should what side effects of steroids can we expect? What are the other medications other than physiotherapy and hydrotherapy that patients should be taking or avoiding so that health of the patient can be considered. So I think broad categories of questions would be three broad categories. One is what kind of medications can patients take, steroids, etc. Second, what is the genetic testing? Genetics testing कहाँ से कराते हैं, क्यों कराते हैं? इनके questions. And third question will be gene therapy. Gene therapy क्या होता है? उससे क्या फायदा हो सकता है? उससे करेक्शन हो सकता है क्या? ट्रीटमेंट हो सकती है क्या? क्योर हो सकता है क्या? और ये कैसे कैसे काम करता है? How does gene therapy work? I think these are the three categories of questions. और किसी को अभी कोई जब शेफाली जी तैयार हो रही हैं मतलब स्लाइड्स के साथ और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए. हाँ, रोशन जी बता रहे हैं कि my daughter is under treatment. एक second. My daughter is under treatment with Dr. Vinod, whole genome exon 9. When can gene therapy be available, and when will it, and how much will it cost? So this is a very difficult question, and we will going to answer this question. We will talk about this question at some point. So basically, हम लोग सब लोग परेशान इसीलिए है कि मसल डिस्ट्रोफीज के लिए इतने साल से क्या हो रहा है और अभी जहाँ पहुंचे हैं वो दे आर सो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव इतना है कि हम लोगों की पहुंच तक कब आएगा. सो दैट इज समथिंग एंड वी आर वर्किंग एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंस्टीट्यूशन लेवल, at Association of Child Neurology and Academy of Pediatric Neurology level, and been working towards making guidelines for the government of India, being part of various committees and all, and also trying to have advocacy. And last year हमने advocacy के लिए प्रोग्राम किए थे जिसके अंदर संजना जी ने भी ज्वाइन किया था. इन दैट हम लोगों को ग्लोबल जीन्स से वी हैड गॉट फंड एंड आई हैड फोकस्ड द थिंग वाज फाइनेंशियल एडवोकेसी. मींस एक्चुअली हमारे पास कब आएगा, and that is something very important for financial advocacy. These things were there, and मैं आपको उसका वो भी दे दूंगी, क्या कहते हैं, we have a report also. I'll give you a QR code of the book as well as the QR code of the 20 webinars जो हमने किए थे, जिसमें 28 लोग, which included from the basic scientists to the government of India people, from the ministries जो fund करते
हैं from the pharma companies internationally, parent support groups, parents themselves, and the crowdfunding, platforms. We had the CEOs of that. So we had, debates with all of them, because हर एक को एक स्टेप आगे बढ़ना है. You can't, have, it cannot be nice isolation. तो basically, because मैंने I will just go through whatever points relevant है. सारा slide नहीं, some they are just cues from the slides. Basically हमारे को diagnose करना होता है, तो पेरेंट्स की तरफ से अगर बच्चे में कभी भी कोई चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो करना होता है. तो हमारे पास बड़ी जगहों पे एक होता है मोटर यूनिट, उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, जो मसल होता है उसकी नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड में उसका एंटीरियर हॉर्न सेल होता है, और वापस नर्व आती है मसल में, और मसल और नर्व का जंक्शन होता है, न्यूरो मसल जंक्शन. और ऊपर से जो ब्रेन से कंट्रोल है, एनीवेयर कमिंग एनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द न्यूरो मसल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, विच विल कम एंड कॉज अ वीकनेस इन द चाइल्ड, बट दे कैन बी मसल डिस्ट्रोफीज. हमारा मेन है जो मेन है वो मसल फाइबर के इन्वॉल्वमेंट पे है. तो बेसिकली वो तो एक कभी भी, द ओनली मैसेज फ्रॉम हेयर इज व्हेनेवर द चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम इन वॉकिंग या रनिंग, कुछ भी इशू होता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट बेटर ऑन हिज और हर ओन. वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर, एंड हम लोग पीडियाट्रिशियंस को भी एम्पावर कर रहे हैं. आई वाज actually currently I'm president of Association of Child Neurology India, and in 2021 I was president of the Academy of Pediatric Neurology of Indian Academy of Pediatrics. तो दोनों के दौरान में ये हो रहा है कि AOCN इंडिया के जो हूँ अभी, तो उसके अंदर तो हमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, प्लस हम साथ में गाइडलाइंस वगैरह बना रहे हैं. एंड जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिशियंस हैं, कोई 45,000 इंडिया में, उसके अंदर से जो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से में रुचि रखते हैं, उनका एक एसोसिएशन का पार्ट है, जिसके गाइडलाइंस के मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं ताकि पीडियाट्रिशियंस ये डायग्नोज कर पाए. क्योंकि हमारे को पेरेंट्स ही नहीं हर जगह भागेंगे तो ये नहीं होता है. एक पिरामिड होता है, जैसे एक ट्रायंगल होता है, तो पिरामिड होता है जो उसके अंदर हमारे को हाई तो जाना है, हमें अपना लेटेस्ट एडवांसेस करना है, वहां जीन थेरेपी का निकला है वो भी यहाँ लाना है, लेकिन कैसे लोगों तक पहुंचना है, base of the pyramid has to work. So I believe in focusing on both the areas. तो डॉक्टर को एम्पावर कर रहे हैं कि कैसे डायग्नोसिस करें, और उसके अंदर क्या होता है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इसको हम छोड़ देते हैं. कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, बायोप्सीज पहले ज्यादा होती थी, अब नहीं करते हैं ज्यादा जेनेटिक्स की वजह से. लेकिन ये बता दें कि जो सारी मसल डिस्ट्रोफीज इज नॉट DMD. ये स्लाइड में बस दिखाने का मतलब है कि बहुत प्रकार की मसल डिस्ट्रोफीज होती हैं, और जो हम जनरली हम बात कर रहे होते हैं वो डुशेन मसल डिस्ट्रोफी के कर रहे होते हैं, बिकॉज वो कॉमन होती है. पर क्या है, सारी मांसपेशी की प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंट एरियाज ऑफ द मसल्स के ग्रुप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, और उनके डिफरेंट जेनेटिक कारण होते हैं, और उनके जेनेटिक उनके बेसिकली डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. तो एवरीथिंग इज नॉट डुशेन मसल डिस्ट्रोफी. दैट्स माय मैसेज टू यू फ्रॉम दिस. अब डायग्नोसिस क्या है, अभी मैंने सुना था जब मैं स्लाइड निकाल रही थी, तो भाई हमारे को क्या होता है कि जब भी ये हमें मसल डिस्ट्रोफी लगता है, जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटा बच्चा जो है, जनरली क्या होता है, कोई टर्निंग आती है या उबड़ खाबड़ एरिया होता है, उसमें वो गिरता है, या उसकी जो काफ्स हैं वो हाइपरट्रोफी लगते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग लगती है, तो उसमें हम CPK कराते हैं, और CPK हाई होता है तो वो मसल डिस्ट्रोफीज होता है. उसके अंदर जनरली दैट डजंट मीन कि DMD है, पर कोई भी मसल डिस्ट्रोफीज में CPK जनरली हाई होता है. अगर CPK लो या नॉर्मल है तो DMD अनलाइकली है. ये फ्लो चार्ट देखिए, ये हमने फ्लो चार्ट हमारे चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन में बनाया है, बेस्ड ऑन द current evidence and the literature, based on the logistics. उसके बाद हमें करना चाहिए MLPA, लेकिन हर जगह होता नहीं है, तो वो करते हैं मल्टीप्लेक्स PCR. होते हैं इसमें जो DMD होता है उसमें 79 एक्सॉन होते हैं. DMD की जो जीन है वो सबसे लंबी जीन है. दैट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स विच विल कॉज प्रॉब्लम्स इन जीन थेरेपी ऑल्सो, वो हम बाद में बात करेंगे. लेकिन उसमें क्या है कि इसमें जो मल्टीप्लेक्स PCR होता है वो एक बेसिक टेस्ट होता है, जिसमें सिर्फ 25 एक्सॉन दिखते हैं. तो अगर किसी ने मल्टीप्लेक्स PCR कराया पेरीफ्री में तो वो नेगेटिव आ गया, डजंट मीन कि DMD नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 25 एक्सॉन ही देखे गए हैं. तो इसलिए हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि MLPA टेस्ट सब जगह इनकरेज किया जाए. कई बार कई प्रकार की होती है, मैं आपको जेनेटिक्स वाला आई विल बी शोइंग यू इन द स्लाइड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ प्रकार के होते हैं जो इसमें भी नहीं होते हैं, उनके लिए एक्सोम करना पड़ता है, लेकिन वो कोई वेरी स्मॉल परसेंटेज होता है. मोस्टली हम कहते हैं कि MLPA शुड बी द फर्स्ट लाइन टेस्ट आफ्टर ऑब्वियसली CPK. और
दूसरा मैं भूल नहीं जाऊं, मैं पहले बता दूं, सीपीके बार बार हर साल करके ले आते हैं कई पेरेंट्स, उससे कोई फायदा तो है नहीं, क्यों करा रहे हैं हम बार बार? डायग्नोसिस हो गया और जब है उसको बढ़ता जाएगा फॉर सम टाइम, और उसके बाद जब उसका क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि वो मसल थोड़ी बढ़ रहा है, मसल जो है वो डिजेनरेट हो रहा है और उसकी जगह फाइब्रोफैटी टिश्यू हो रहा है। तो जो सीपीके लेवल बाद में कम हो जाएगा, तो कहीं पेरेंट्स कहते हैं हमारा सीपीके कम होने लग गया है तो इट इज गुड, इट इज नॉट गुड, इट इज दैट द मसल मास इज गोइंग डाउन एंड तो इसलिए वो कम हो रहा है, इट इज अ नॉर्मल कोर्स। तो पेरेंट्स को अननेसेसरीली बच्चे का सैंपल कराना, पैसे वेस्ट करना, ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट नीड टू सीपीके टू मॉनिटर। हाँ, मतलब एक मैंने अनरिलेटेड चीज थी बट दिमाग में आई, बाद में नहीं आती, तो इसलिए मैंने बता दिया, बिकॉज कई लोग करा के लाते हैं ना, व्हाई आर वी वेस्टिंग रिसोर्सेज, बच्चे को प्रिक भी लग रही है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, यू नो व्हाई शुड वी डू दैट। एंड अगर हमारा जब MLPA नेगेटिव आया तब हम लोग मसल बायोप्सी करते हैं या होल एक्सोम करते हैं। पहले हम लोग पुराने टाइम की बता रही हूँ, और बिफोर अबाउट 15 years बैक वी यूज्ड टू डू एवरीबॉडी विद मसल बायोप्सीज। पर एक और ये ध्यान रखिए, मसल बायोप्सी कैन नॉट बी डन हर नुक्कड़ कॉर्नर में नहीं होता। मसल बायोप्सी शुड ओनली बी डन इन जोन्सिस सेंटर में, उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन में स्नैप फ्रीज करके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इट इज नॉट, ये नहीं है कि बायोप्सी कर दी और उसके टुकड़े को नॉर्मल स्टेन कर दिया, उसके स्पेशल स्टेन्स होते हैं जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, जिसकी थोड़ी फोटो दिखा दूंगी टू अंडरस्टैंड, उसी से डायग्नोसिस होती है। तो वो जिस सेंटर में होती है वही करना चाहिए, बिकॉज यू कांट ट्रांसपोर्ट द बायोप्सी। बायोप्सी को इमीडिएटली हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्नैप फ्रीज करते हैं, तो आप कहीं भेज ही नहीं सकते, तो आपको बंदे को सेंटर में भेजना पड़ता है। तो कई बार ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती है कि वो बायोप्सी कर देंगे पर वहां पे स्टेनिंग है नहीं, स्पेशल डायग्नोसिस होगी नहीं। क्योंकि क्या है कि नॉट ओनली वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन DMD ना, जो बाकी लिम्ब गर्डल है उसके अंदर भी उनके अपने स्टेन्स होते हैं, उनकी स्टेनिंग से उनको आइडिया होता है कि हाँ भैया सार्कोग्लाइकेनोपैथी है कि क्या है, सो ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो हम या तो बायोप्सी कर लेते हैं अगर, और उसमें कुछ आइडिया होता है और कुछ प्रॉब्लम होती है फाइनली, तो NGS मतलब होल एक्सोम कर लेते हैं और उसी हिसाब से डायग्नोसिस मिलता है। अगर होल एक्सोम में और इसमें या बायोप्सी में जो डिस्ट्रोफिन की स्टेनिंग्स आती है, वो बाद में आपको फोटो दिखाती हूँ, उसमें नेगेटिव आता है तो स्किन बायोप्सी प्रूवन होता है। लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट के लिए अब कोई ऑप्शंस है कि नहीं, तो आपको होल मतलब आपको जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एक और चीज है, जो डिस्ट्रोफिनोपैथी होती है ना, वो सिर्फ क्लासिकल डुशेन मसल डिस्ट्रोफी नहीं होती। ये स्लाइड बताने का ये है, ये एक्चुअली स्लाइड बनी तो डॉक्टरों के उसमें डिस्कशन में के लिए थी, बिकॉज मैंने सिर्फ इसमें है कि हमें हल्की बीमारी वाले भी हो सकते हैं, विच विल बी ऑनसेट में भी आफ्टर 6-7 years, एंड दे मेन जर्मन क्लासिकल डुशेन मसल डिस्ट्रोफी एज वी नो कि 12 to 14 years में दे बिकम नॉन एम्बुलेटरी, व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। जनरली स्पीकिंग एवरीथिंग इज नॉट सेक्रोसेंट, तो कोई एक आध साल पहले और एक आध साल बाद में भी हो सकता है। लेकिन जो बेकर्स वाले होते हैं जनरली विल कीप वॉकिंग टू द एडल्टहुड, राइट, सो दे आर द माइल्डर वेरिएशन, एंड उसके बीच वाले को आउटलायर कहते हैं। बट देयर अदर प्रॉब्लम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी डिस्ट्रोफिनोपैथीज जो है उसके अंदर हमें सिर्फ कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, सिर्फ मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, और फीमेल्स में भी ये मैनिफेस्ट हो सकती है किसी कंडीशन में। तो डुशेन मसल ऑल्दो X-linked is not only always in मेल्स, इट इज मोस्टली इन मेल्स, बट इट कैन बी देयर। हमें मालूम तो होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए ना। और आपको परसेंटेज दिखाओ तो हमारा 5-6 साल का डेटा में 99% जो थे वो मेल्स ही थे, 2 ही बच्चे हमारे को आउट ऑफ 845 फीमेल्स मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जो हमारे को प्रेजेंट कर रहे थे वो 6.5 साल में कर रहे थे। तो ये जो और इसके अंदर जो हमारे पेशेंट्स थे, आउट ऑफ द टोटल जो हमने पेशेंट देखे हैं, मोस्टली कॉमन 88% तो ये डिस्ट्रोफिनोपैथी थी, लिम्ब गर्डल वाली 6.5% थी, और कंजेनिटल मसल डिस्ट्रोफी 3.6% वाली थी। लेकिन साथ में और भी थोड़ी थोड़ी और होती है मसल डिस्ट्रोफी, फेशियोस्कैपुलर, ह्यूमरल और EDMD मायोटोनिक थोड़ी और है, वो भी थी नेक्स्ट अंडर 2%। मतलब एक स्पेक्ट्रम पूरा है, और ऐसा नहीं है कि विदेशों में, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे अपने सेंटर में हमने ये देखा हुआ है। कैन somebody म्यूट योरसेल्फ, जो भी।
तो ये हमने मैनेजमेंट का बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो बच्चा है डिस्ट्रोफिनोपैथीज, आई एम जस्ट मेंशनिंग ऑन डिस्ट्रोफिनोपैथीज, और बाकी मसल डिस्ट्रोफीज का भी आई टेल, वी हैव टू डू द इवैल्यूएशन की कितना बच्चा चल पाता है, कितना जमीन से उठता है। गावर साइन होता है ना, जब नीचे बच्चा बैठाते हैं फ्लोर पे, उसको उठाते हैं तो ही क्लाइम्स ओवर हिज ओन नीज, मतलब घुटने पे हाथ रख के उठते हैं, तो कितना टाइम वो लेता है उठने में, और कितना चल रहा है 6 मिनट में, कितना चल रहा है एंड ऑल। ये सब फंक्शनल असेसमेंट होती है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। और फिर हमारे को देखना होता है कि बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा। दोनों पॉइंट में क्या है, अगर कहीं बच्चा लेट आता है तो उसमें नहीं चल रहा, तो हर एक का केयर डिफरेंट होता है। पर जस्ट अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड ऑफ केयर ग्लोबली फॉर डुशेन मसल डिस्ट्रोफी इज गिविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्टर को भी बताना और पेशेंट्स को भी बताना, क्योंकि स्टेरॉइड जब होता है तो हमारे एंटीना खड़े हो जाते हैं कि भैया स्टेरॉइड हो गया, कुछ गड़बड़ है। It's not a garbage thing, and it is it's important. I'll mention why it is important. Plus, ये बहुत important slide है, which is very commonly missed, and I think Sanjana is doing a very good work in having the center there where you're giving the holistic multidisciplinary management. तो muscles देखना है, और साथ में ये बच्चे बाहर धूप में जाते नहीं हैं, they can have a problem of vitamin D, so calcium, phosphate, vitamin D levels and bone mineral densitometry has to be seen. Growth nutrition has to be maintained. ज़्यादा भी नहीं खाए, has to have nutritious food, should not be gaining weight. Pulmonary, cardiac, other systemic evaluation, psychological counseling is important. जब पेरेंट्स जनरली बच्चे के सामने पूछने लग जाते हैं डॉक्टर से कि क्या होगा, I always make the child go out because the child understands everything. उनके सामने बात करोगे आप 5-6 साल के बच्चे में कि वो बैठ जाएगा व्हील चेयर में, ultimately it's going to demoralize. Once one has to understand कि हमारे लाइफ में जो हमारे को कार्ड्स मिले हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, we'll have to work on them. एंड न्यूअर ट्रीटमेंट्स आर कमिंग, दवाइयां हैं जो स्टेरॉइड्स मेन है, और जो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलॉन्ग विद स्पेशल एजुकेशन जो है चल रहा है, दे आर गाइडलाइंस फॉर ऑल दिस ग्लोबली। हम उनको इंडिया में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो आपके लिए विल बी अवेलेबल फॉर द वी हैव मेड सम गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी फॉर व्हाट करंट एविडेंस का। ये जो हम बता रहे थे कि इट इज द लार्ज, वेरी लार्ज जीन जिसमें 79 एक्सॉन होते हैं। एनीवेयर एनीथिंग गोइंग रॉन्ग is going to cause Duchenne muscle dystrophy. So two patients will not be different, will not be same, or everybody may be different. तो अब क्या होता है कि उसके अंदर दो चीजें हो सकती है ना, ये वाला जो है ये तो नॉर्मल है, इसमें कहीं पे भी कोई भी ब्रेकेज आए, ये ब्रेकेज आई यहाँ पे गायब हुआ है, कोई म्यूटेशन आई है, लेकिन ये आसपास के दोनों पोर्शन जुड़ नहीं पा रहे हैं, सो दिस इज कॉजिंग अ आउट ऑफ फ्रेम म्यूटेशन, सो इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड डूशिन हो जाता है। और जो बेकर होता है उसमें जो डिलीट हो गया, जो म्यूटेशन हो गया, लेकिन उसके अपोजिंग एंड्स है, तो हल्का फुल्का प्रोटीन बन जाएगा, थोड़ा फंक्शनल है, इसलिए वो ज्यादा चल जाते हैं। तो दीज आर ग्रॉसली स्पीकिंग थिंग्स। एंड साथ में क्या होता है, कई बार कहीं फुल स्टॉप आ जाता है, एक जो म्यूटेशन हुई और यहाँ पे एक म्यूटेशन, एक कोडॉन आया जिसका काम ही फुल स्टॉप का काम होता है, तो वो वाले के अंदर वो एटेलुरन एक दवाई आई है जो स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू है, और जितनी जो म्यूटेशन जैसी हो रही है उसके हिसाब से कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिसके अंदर कुछ एक्सॉन स्किपिंग हो पाती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, हर परसेंट में नहीं होती। अब क्या होता है, डिस्ट्रोफिन के कम होती है और साथ में ऑनगोइंग ऑक्सीडेटिव और रेडिकल डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव स्टेरॉइड्स। इट इज दैट डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी को तो वो पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऑनगोइंग डैमेज है उसको कम कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी है, बच्चा तो जब पैदा हुआ था तो दिखने में तो सही था, आहिस्ता आहिस्ता ही आया ना, तो उसके अंदर डैमेज हो रहा है ना, तभी इट्स गोइंग ऑन प्रोग्रेसिंग। द प्रॉब्लम इज नॉट बाद में नहीं आई है, इट इज फ्रॉम द बिगनिंग। तो डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी इज लीडिंग टू प्रॉब्लम जिसके अंदर कैल्शियम का चक्कर चल रहा है, और उसके साथ में एपोप्टोसिस हो रहा है जिसमें वो खाए जा रहे हैं सेल्स को, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स का डैमेज हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड मसल वेस्टिंग एंड फाइब्रोसिस। तो जो हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डिजीज मॉडिफाइंग, उसी को हम चेस कर रहे हैं। हम ये तो भूल रहे हैं सिम्टोमेटिक, प्रिवेंटिंग फर्दर मसल डैमेज एंड एक्सेलरेटिंग मसल रिपेयर। सो दैट इज वाई बार बार बोल रही हूँ, करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज स्टेरॉइड्स, राइट। सो बाकी जो है मैंने बताया था, वो म्यूटेशन में फुल स्टॉप आ गया, स्टॉप कोडॉन, तो यू हैव टू हैव अ स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू जिसकी दवाई एटेलुरन है।
एक्सॉन स्किपिंग एजेंट्स हैं वो 51, 53 और 45 अभी है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि 51 स्किपिंग एंड ऑल। उसका मतलब है दे विल बी अ ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस जो एमिनेबल होंगी विद ईदर वन ऑफ दीज। और जो सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है 51, 45 और 53 में, वो सेम प्रिंसिपल से और भी एक्सॉन स्किपिंग हो सकेंगी इन द नियर फ्यूचर। द साइंस इज सेम, जस्ट दैट कि जो ASO एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो दवाई बनी है विच इज कवरिंग अप दैट एरिया, जो गैप आ रहा है, तो सिमिलर वे में मेनी मोर विल कम। और यूट्रोपिन अपरेगुलेटर्स भी कुछ है, वो आगे आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज स्टेरॉइड्स, तो वी हैव टू गिव देम स्टेरॉइड्स एंड डेली स्टेरॉइड्स हैव टू बी गिवन, और यू मे गिव डेफ्लासाकॉर्ड। लेकिन किसको देना है वो देखना पड़ेगा, आपको बताती हूँ। उसमें कोई एविडेंस नहीं कि कौन किससे बेटर है, एक्सेप्ट साइड इफेक्ट थोड़े डेफ्लासाकॉर्ड के कम होते हैं। डेफ्लासाकॉर्ड और प्रेडिसलोन में से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे नॉन एम्बुलेटरी होते हैं तो डोज हम कम कर देते हैं, लेकिन देते हैं। Because the muscles are not only of the hands and legs or the abdomen or the respiratory वाला, लेकिन they are also of the cardiac, they are also of the जो हमारे GIT होती है, हमारे खाने की आंतें होती हैं, स्टमक होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, अभी वो सब में भी मसल्स हैं। So it is you have to continue to give when the child becomes non-ambulatory as well. अब इस स्टेरॉइड की ये देखो 6-7 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। This is not meant, this is making you to understand कि इसका रोल है, ये जो ongoing डैमेज को रोकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है टू गिव स्टेरॉइड्स इन द रिकमेंडेड डोज। और साथ में एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग भी करना है, कार्डियक इवैल्यूएशन करना है। पहले छोटे बच्चे में एवरी 2 इयर्स करना है, फिर 10 इयर्स के बाद एनुअली करना है। और अगर उसमें कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी कम होती है तो एस इनहिबिटर्स दिया जाता है। कार्डियक इवैल्यूएशन वगैरह प्रोएक्टिवली करना है शुरू में एवरी 2 इयर्स और बाद में एनुअली। और जब उसकी कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी में इशू आने लगते हैं, या जब उस एज में बच्चा पहुंच जाता है जब कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हम वो इनहेलर वगैरह दवाइयां दे देते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। और बोन हेल्थ का मैंने बताया, तो हमारे को करना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी लेवल्स और डेक्सा स्कैन। क्योंकि ये बच्चे ज्यादा उतना बाकी बच्चों की तरह धूप में घूम घाम नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कमी हो जाती है, कमी हो जाएगी, कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर और प्रॉब्लम है। तो ये हमें प्रिवेंट करना है, वी हैव टू होलिस्टिकली मैनेज, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना होए। और फिर इसको एंडोक्राइन एवेल्युएशन भी करना है। और कार्टिकोस्टेरॉइड चालू करें तो कब करें, एक तो करना है वो तो मैंने बोल दिया, और नॉन एम्बुलेटरी होंगे तो डोज कम कर देंगे, वो भी बोल दिया। पहले कहते थे थोड़ा वेट कर लो फिर करेंगे, अभी स्टडीज कहती हैं कि जो बच्चों को जल्दी शुरू किया है लेस देन 5 इयर्स में, दे हैड अ बेटर रिस्पॉन्स। तो इट इज बेटर नॉट टू वेट। थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है, लाइक 4-5 साल के अंदर हमें दे देना चाहिए। एंड दो डिफरेंट डोजेस पे देखा हुआ स्टडी, लो एंड हाई डोज, तो इतना कोई फर्क नहीं आया। हाई डोज में साइड इफेक्ट ज्यादा है, सो इट्स बेटर टू गिव इट एट द नॉर्मल डोज। 0.75 mg/kg पर डे देते हैं। डेफ्लासाकॉर्ड इज अ गुड ऑल्टरनेटिव, उसका साइड इफेक्ट कम है, लेकिन जब हेड टू हेड कंपैरिजन किया है तो उसमें एफिकेसी में फर्क नहीं है, कॉस्ट फर्क हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा है। तो जिनमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, तो हम डेफ्लासाकॉर्ड दे देते हैं, अदरवाइज प्रेडिसलोन इज गुड इनफ। हमने एक स्टडी करी थी कि हमने देखा कि हम वो ना सिर्फ फर्स्ट 10 डेज दे देते हैं दवाई, बाकी 20 डेज एब्सेंट, मतलब ड्रग फ्री पीरियड, हॉलीडे। तो वी सॉ एंड वी फाउंड आउट कि इंटरमिटेंट वाज नॉट इंफीरियर इन मूविंग मसल स्ट्रेंथ इन 6 months। हमने तो स्टडी 6 महीने की थी, उसमें था कि 6 महीने में आप सिर्फ 10 दिन दोगे तो भी आपको मसल स्ट्रेंथ सेम रह रही है। लेकिन एक इंटरनेशनल स्टडी जो लंबी चली है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखा फॉलोअप में बहुत साल देखा है पेशेंट्स को, तो उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो सिमिलर था, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी बेटर जो है, अगर इफ यू आर गोइंग टू बी गिविंग देम डेली। जो इंटरमिटेंट वाले हैं उनका डिक्लाइन ज्यादा हो जाता है, तो इट इज बेटर एंड वी आर गिविंग डेली ओनली। ठीक है। तो दूसरा, हार्ट में कुछ फर्क होता है स्टेरॉइड देने से, तो ये सब आपको बस ये लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ। स्टेरॉइड देने से 85% कॉजेज जो हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मोर्टेलिटी के कम होते हैं। कार्डियक की डिसफंक्शन को 86% लोअर होता है। और जो हर
एवरी ईयर एनुअली लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होता है, जो एको में करते हैं वो चीजें खराब हो रही होती हैं, वो खराब कम होती हैं. सो स्टेरॉइड्स हैव अ डेफिनेटिव रोल इन इंप्रूविंग क्वालिटी. देखो एक है ना, क्योर तो हो नहीं रहा, रामबाण तो हो नहीं रहा, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कॉम्प्लिकेशंस को कम करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करें ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द फैमिली. अच्छा, अब बेकर्स में देना है कि नहीं, दैट इज डिबेटेबल. बेकर्स में क्वेश्चन आता है स्टेरॉइड दे कि नहीं दे. तो इट्स बीइंग सेड कि यू मे गिव, some patients may have benefit, some may not have benefit, so you may individualize, और किसी को benefit हो रहा है तो आप दे सकते हो. तो अभी बेकर्स के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, पर दिया जा सकता है. एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं एडवोकेट कर रही हूँ इसमें, नॉट ओनली फॉर मसल डिस्ट्रोफीज बट ऑल क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज. हमारे को, हम पीडियाट्रिशियन देख रहे हैं, हम 18 साल तक देखते हैं, उसके बाद एडल्ट वाले देखते हैं. तो जब एडोलेसेंट इशू होते हैं, जब टीनेजर के टाइम में, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर ट्रांजिशनल केयर हैंडिंग ओवर फॉर सम टाइम. बोथ द पीडियाट्रिशियन एंड द एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट शुड सिट एंड सी द पेशेंट्स, ताकि प्रॉपरली ट्रांजिशनल केयर हो जाए. दूसरी तरफ हमें पैलिएटिव केयर की तरफ भी ध्यान देना है कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा सिक हो रहे हैं बाद में, तो उसके बाद उनको पैलिएटिव केयर के लिए भी देना है सपोर्ट. हमें ये पता है फिर बाद में नाइट टाइम वेंटिलेशन वगैरह आजकल सस्ते में अवेलेबल है. एंड आई थिंक एज यू पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैव टू प्रोवाइड कि आप लोग दे सकते हैं. एंड सपोज वन पर्सन हैज पास्ड अवे, फिर उनका वापस करके कैन बी गिवन टू अदर. अब वी हैव टू टॉक अबाउट फैक्ट्स बिकॉज वी नो कि उनका लाइफ स्पैन तो हमसे कम ही है. तो मतलब I'm talking about DMD. So we have to be very practical about it. तो palliative care में भी ये है कि palliative care is कि treat each life with dignity but provide them support and comfort in the end time of life. जब हमें पता है कि वो एंड आ रहा है तो वो कंफर्टेबल रहना है. दूसरा, जब वो नॉन एम्बुलेटरी हो जाते हैं और बहुत एडवांस में, ये याद रखना है कि हमें या तो एयर मैट्रेस यूज करें, एयर मैट्रेस नहीं भी, या वाटर मैट्रेस वो नहीं भी यूज कर सकते, देन वी कैन हैव डोनट शेप. डोनट नहीं होता, वो गोल गोल जैसे बड़ा होता है हमारा, हम बड़ा खाते हैं, सबने खाया होगा बड़ा, तो वो डोनट शेप होता है. डोनट्स भी खाए होंगे. तो मीन्स वो ना रिंग्स होती हैं ऑफ, जिसमें हम, जैसे साइकिल के टायर ट्यूब होता है वैसे यू कैन इन्फ्लेट. बच्चे स्विमिंग करते हैं तो उसकी वो ट्यूब होती है, वो डोनट ही हो गई. तो मतलब इंस्टेंट किसी को कहोगे भैया हम एयर मैट्रेस नहीं यूज कर सकते, उसके लिए एयर मैट्रेस के लिए हमेशा वो लाइट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है एंड ऑल दैट. सो यू कैन यूज ऑल दीज इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स. यू कैन यूज अ साइकिल ट्यूब, यू कैन यूज जो स्विमिंग के लिए बच्चों को देते हैं वो कर सकते हैं. नहीं तो आप जाओगे तो 300-400 रुपए के लिए अमेजोन में भी मिलते हैं. तो उसके अंदर वो हवा डालनी होती है ताकि ये है कि जो प्रेशर पॉइंट्स है बच्चे के वो हार्ड में ना हो, लाके उसको कोई जख्म ना हो. जख्म हो गया तो उसके ऊपर लेने के देने पड़ जाते हैं, देन कॉम्प्लिकेशन. सो वी हैव टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इंश्योर the quality of the life is good, depending on different age time spectrum. जो मेजर ट्रीटमेंट्स हैं उसमें क्या, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, हमने स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया, सपोर्टिव हो गया, एक्सॉन स्किपिंग, स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू, जीन थेरेपी और जीनोम एडिटिंग है. तो FDA ने अप्रूव जो किया है, एटेलुरिन किया है, जो है वो एटेलुरिन जो है अप्रूव्ड यूरोपियन यूनियन ने किया था फॉर स्टॉप कोडॉन वाला. उसका हमारे यहाँ ट्रायल चल रहा था, हमारे 11 पेशेंट उस ट्रायल में थे और अभी वो ट्रायल खत्म होने के बाद भी उनको मेडिसिन मिल रही है. एंड ओपन लेबल भी खत्म हो गया, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मिल रहा है और उसमें बेनिफिट पाया गया है. उसका भी FDA अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी होने लगा है. एटिप्लरसिन एक्सॉन 51 जो है उसका हुआ है, बहुत साल पहले हुआ है, देखो 7 साल पहले हुआ है. डिफ्लेक्सिकॉर्ड का भी हुआ है. फिर 53 स्पिक्स, ये जो 53 है उनका भी हुआ है 3-4 साल पहले. और ये 45 का रिसेंट हुआ था 2.5 साल पहले. इसमें मैंने डाला नहीं है, 23 जून 2023 को वो जीन थेरेपी अप्रूव हुई है, 23 जून को. उसका मैं बताती हूँ आगे. तो एटेलुरिन वो है जो स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू है. ये जो पेशेंट्स होते हैं जनरली, देखो इसमें जो जनरल मैंने बताया 79 एक्सॉन है, सो दैट आर अराउंड 7200 म्यूटेशंस हो सकती हैं जो DMD को प्रोड्यूस करते हैं. तो उसके अंदर से सिर्फ अराउंड 40 to 45% आर एमेनेबल टू दीज थेरेपीज. 10% में नॉनसेंस म्यूटेशन होती है जिसमें ये ओरल मेडिकेशन दी जा रही है और ये दे सकते हैं, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बट यस इट हैज शोन टू बी बेनिफिशियल. तो जो फुल स्टॉप वाला है उसको बाईपास
कर लेता है, वो बेसिकली दवाई गोज एंड बाईपासेस द फुल स्टॉप एरिया एंड इट इज कॉजिंग अ स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू, एंड उसमें फंक्शनैलिटी दिखाई है कि बच्चों का जो बीमारी में गिरावट आती है, हम सारे बच्चों में डीएमडी में गिरावट है, वो गिरावट कम हो जाती है. दैट्स अबाउट व्हाट दे आर शोइंग. 51 एक्सॉन स्किपिंग का मैक्सिमम लिटरेचर है, मैक्सिमम स्टडी इस पे हुई है, और ये सितंबर 19 2016 में अप्रूव हुई. दैट मीन्स 7 years बैक. सो बेसिकली देखो ये क्या होती है, दिस मेडिसिन ये चिपकते हैं यहाँ पे, तो जो एरिया है उसको बाईपास करती है. तो किन किन एरियाज को बाईपास कर सकती है, सिर्फ एक म्यूटेशन को नहीं, दे मस्ट बी अराउंड 20-25 म्यूटेशन जिनको कर सकती है, जो इसके आसपास होती है. तो उसके लिए वी हैव टू, उससे बाईपास करती है तो फिर प्रोटीन बनता है विच इज नॉट लिटिल बिट फंक्शनल प्रोटीन. तो इट हैज बीन शोन ऑल्सो इन वेरियस टेस्ट कि फंक्शनल जो डिक्लाइन है वो रुकता नहीं है. द डिक्लाइन कंटिन्यूज बट द रेट ऑफ डिक्लाइन कम होती है. ओके, एंड दे हैव ऑल्सो शोन कि जो बच्चे बैठ गए हैं, जो नॉन एम्बुलेटरी है, उसमें भी लंग फंक्शन वगैरह में इंप्रूवमेंट रहती है, राइट, और रेस्पिरेटरी और कार्डियक में. फिर जो 53 है उसके अंदर भी ये जो है, जो स्टॉप कोडॉन वाला था ना एटालुरेन, वो डेली दवाई देनी होती है ओरल, और जो ये एटिप्लरसिन था वीकली इन्फ्यूजन है, वीकली इन्फ्यूजन लाइफ लॉन्ग. ये जो गोल्डिलार्सन वेटेलर्सन भी वीकली इन्फ्यूजन है, नस में डलता है, एंड इसमें इन्होंने शो किया गया है कि इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रही है, और इन बच्चों में तो डिस्ट्रोफिन थोड़ा ज्यादा बन रहा है इन दिस एक्सॉन 53 में. इसमें और कुछ ज्यादा दिखाया नहीं है. 45 जो 21 में अप्रूव हुआ था उसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि सेफ है, तो इसमें भी लंबे चौड़े स्टडी नहीं हुई. तो लंबी चौड़ी स्टडी किस में हुई है, 51 एक्सॉन स्किपिंग में और एटालुरेन वाले में. यूट्रोपिन अपरेगुलेटेस क्या होता है, ये क्या होता है कि जब हमारा जो डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी होती है ना, तो फिर ये यूट्रोपिन बढ़ जाता है, तो फिर वो उसके लिए यूट्रोपिन जो अपरेगुलेशन नेचुरली होता है डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी में, तो ये कह रहे हैं ये दवाई जब देंगे तो इस पे ट्रायल चल रहा है अभी यूट्रोमिट में, जो इंक्रीज करता है यूट्रोपिन स्केलेटल मसल में. तो बेसिकली हमने क्या किया कि हम ये जो कर रहे हैं दवाइयां, जो डैमेज चल रहा है जहां जहां, उस पर बड़ी सारी स्टडी चल रही है. कैल्शियम के लिए क्रिएटिन दिया जा रहा है, मेटफॉर्मिन कहीं दिया जा रहा है, इन्फ्लेमेशन के लिए आइडेबोनोन दिया जा रहा है. तो ये सब स्टडीज रिसर्च मोड में चल रही हैं. तो फाइब्रोसिस कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, मसल ग्रोथ प्रोटेक्शन, कैल्शियम होम्योस्टेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल कार्डियो फंक्शन में डिफरेंट चीजों के ऊपर स्टडीज चल रही हैं. लॉट ऑफ ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. एक ये वैमलोरोन एक दवाई है विच हैज बीन प्रॉमिसिंग, वो स्टेरॉइड्स का रिप्लेसमेंट है. इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टेरॉइड्स. इस पे काफी कुछ आया है. बेकर्स के ऊपर भी एक स्टडी चल रही है एक दवाई की, जो ईडीजी वगैरह है. तो ये काफी है फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ट्रायल्स आर गोइंग ऑन एंड दे आर एक्टिंग ऑन द प्राइमरी एज वेल एज जो दूसरा डैमेज हो रहा है, सब चीजों के ऊपर बड़ी सारी स्टडी चल रही है, ताकि समवेयर सम रिस्पॉन्स विल कम. जीन थेरेपी वाला है, जो जीन थेरेपी क्या है कि जो जीन है, प्रॉब्लम क्या आ रही है डीएमडी से, डीएमडी इज अ वेरी ह्यूज जीन. तो पूरी डीएमडी की जीन तो घुसती नहीं है. AV9 इज एडिनोवायरस 9 वेक्टर, जिस वायरस है जिसको एक वेक्टर माना जाता है. उसके अंदर इट्स लाइक अ व्हीकल जिसमें वो जीन को डाल के दिया जाता है. इट इज वर्किंग वेरी वेल इन SMA का, जोलजेस्मा जो 16 करोड़ वाला वो था, उस वर्किंग वेरी वेल. इट्स अ स्मॉल जीन, तो वो चली जाती है SMN1 पूरी की पूरी घुस जाती है. अब डीएमडी में प्रॉब्लम ये है कि एडिनोवायरस इज अ स्मॉल वायरस, इट्स अ जीन इज टू ह्यूज. तभी सारी जो ट्रायल होते हैं डीएमडी के, वो माइक्रो डिस्ट्रोफिन्स पे होते हैं, तो छोटे छोटे पोर्शंस में होते हैं. सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ जीन थेरेपी. सरेप्टा का चल रहा था ये ट्रायल, उसमें फाइजर का चल रहा है, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको एडिट करके, जिसको जीनोम एडिटिंग करते हैं, वो कर रहे हैं. तो ये माइक्रो डिस्ट्रोफिन है जिसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया गया है इन्होंने. और कुछ एक इंडिवर स्टडी भी चल रही है, उन्होंने कुछ दिखाया कि 3-3 पॉइंट स्कोर में बदल रहा है. 3-3 पॉइंट स्कोर में बदल रहा है. दे आर ऑल इनकरेजिंग, बट वेदर दे विल, हमारे जो बच्चों का प्रोग्रेशन है उसको हॉल्ट करेगा कि नहीं, दैट वी विल नॉट कम टू नो एज ऑफ नाउ. सो जीन थेरेपी में और भी कोई फाइजर की भी और कुछ चल रही है. इग्नाइट एक डीएमडी का ट्रायल है, चल रहा है. और दूसरा, बिफोर आई कम टू द करंट जीन थेरेपी अप्रूव, ये एक और चीज चल रही है. स्टेम सेल्स का एज ऑफ नाउ कोई रोल नहीं है. बच्चे का तो लेने का मतलब नहीं है, उसको जेनेटिक डिफेक्ट है, उसका तो ले ही नहीं सकते. ये कह रहे हैं कि अगर लेके कोई सेल्स, उसको एडिट करके, जीनोम एडिट करके डाल दिया जाए, तो इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुए अभी तक.
सिर्फ ये है VTA 110, ये FDA अप्रूव किया है, एक स्पेशल इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, मतलब स्टेम सेल है जिसके अंदर जीनोम एडिटिंग करके जो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, हाँ, उसके लिए ये ड्रग बन के ट्रायल के लिए वो चल रही है। हम लोगों ने वी हैड डन दिस, वी वर ऑल्सो मैंने वो स्लाइड को बाईपास किया था, आई नॉट टॉक्ड अबाउट इट। वो क्या था कि हम मसल बायोप्सी करते थे पहले, तो हमने कहा कि वी कैन रिप्लेस मसल बायोप्सी बाय स्किन बायोप्सी। क्या होता है स्किन बायोप्सी, क्या होता है, हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना आता है, वो स्वेट ग्लैंड होता है, उसके नीचे ना एक एरेक्टर पाइलर है, मसल होता है। अगर हम उस मसल को स्टेन कर देंगे तो मसल के अंदर भी वही दिखेगा जो हमारे वैसे मांसपेशी वाला जो हम बायोप्सी कर रहे थे, राइट। तो हमने वो स्टडीज करी हैं एंड वी आर ऑल्सो प्रपोजिंग कि ये सब करना चाहिए, क्योंकि ट्रायल भी जो नई दवाइयां हैं उसमें भी बार बार तो मसल बायोप्सी करनी पड़ती है। तो अगर पेरेंट्स बार बार मसल बायोप्सी तो अपने बच्चे की नहीं कराएंगे ना, मैक्सिमम 2 बार ही करा लेंगे। तो इंस्टेड अगर स्किन बायोप्सी तो बार बार हो ही सकती है ना पंच करके टू एवर फॉर द रिसर्च, तो हमने उसी स्किन बायोप्सी से इसका हमने सेल्स मसल सेल बनाया है, पर उसके आगे तो बहुत लंबा है रेस। साथ में ना ये एक्सोसोम्स के ऊपर भी स्टडी चल रही है जो स्टेम सेल्स के पार्ट है, बट दीज आर ऑल वेरी प्रिलिमिनरी स्टडीज। एक ये ना एक्सॉन एक मैप एक्सप्लोरर है, ये डाउनलोड किया जा सकता है, और ये सेरेप्टा का टूल है जिसके अंदर आपका बच्चे का कोई म्यूटेशन है तो उससे पता चल जाता है। नहीं तो ये टेबल है, तो जैसे बताया था ना एक्सॉन 51 स्किपिंग है, तो उसमें ये देखो इतने सारी प्रकार की जो म्यूटेशन अमेनेबल है, ऐसे ही 53 के लिए इतनी अमेनेबल है, इसीलिए 45 की इतनी अमेनेबल है। लेकिन बाकी लोगों के अंदर भी तो लिखा है बिकॉज दे आर थ्योरेटिकली पॉसिबल, पर वो दवाइयां नहीं है। So, but the similar principles पे चल रहा है, तो we expect that there may be too many drugs coming up for various other DMD के genetic mutations. अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज एटिप्लर्सन ने दिखाया है 51, मैं नाम मेडिसिन के नहीं लेती, स्किपिंग के बताती हूँ। 51 में ये बताया गया है कि फंक्शनल डिक्लाइन कम हो जाता है। 53 में सिर्फ ये बताया गया है कि डिस्ट्रोफिन बढ़ता है, और 45 में ये बताया गया है कि सेफ है बस। मतलब वो तो, और जो एटालुरन था स्टॉप कोडॉन रीथ्रू, उसमें भी दिखाया था डिक्लाइन ना में कमी दिखाई है। दैट मींस जो प्रॉमिसिंग जो 2 हो गए, 51 वाला हो गया और एटालुरन हो गया, बाकी अभी प्रिलिमिनरी है टू कम टू से। कॉस्ट देख लीजिए, दिस इज अ वेरी डेंजरस लाइक, हाँ, द कॉस्ट फॉर अ 30 kg पेशेंट पर ईयर इज 6.8 करोड़ 51 का, टू 6.8 करोड़ अगेन 53 का, एंड ये 53 दूसरी कंपनी का 8 करोड़, एक 45 is 6.8 crore and Ataluren is 3.1 crore per person per year per 30 kg child. That is why we right now they are talking about because rare disease policy has only 50 lakhs given per patient. So importance has been, abhi the government of India is talking with all these companies to reduce the rates to be procured bulk mein and all that, trying to explore. We are through I'm also part of, I'm co-chair for committee for ICMR, usme we are making, and a lot of proposals have been invited ki indigenously cheeze banai jayenge, jo make in India hoga, they are going to be cheaper and more sustainable for our patients, because these are ASOs जो दवाई बन रही है ना, there is nothing, it's not very complicated. Gene therapy is complicated but it's not that complicated. So basically, और अभी उन्होंने कुछ चेक कर रहे हैं कि कुछ जीनोटाइपिक करके ना, उस जीनोटाइप्स को देख के उसका फंक्शनल के हिसाब से भी स्टडी करके देख रहे हैं। वैमोलोरन मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड का रिप्लेसमेंट का नया ट्रायल्स है, ये सब बिल्कुल लेटेस्ट है। साथ में वो वाइटोलर्सिन का भी अभी स्टडी आया है कि थोड़ा सा 53 में थोड़ा खैर स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली जो 53, 51 और 45 चल रहा है, पर 44 और 2 वाला भी आने वाला है, राइट। सो ऐसे और भी आएंगे। अब दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी। एलिविडिस विच इज द डिलैंडिस्ट्रोन मॉक्सपर्विक थिंग, ये भी $2 million से ऊपर का होगा, एंड द सेम थिंग वाज $2.1 million, तो वो जोलजेस्मा भी था। दिस इज द FDA अप्रूव्ड ऑन June 22nd, 2023 and first gene therapy for treatment of certain patients. उन्होंने बोला है सेरेप्टा का है 4 to 5 years of age का बच्चा होना चाहिए। एडिनोवायरस में माइक्रोडिस्ट्रोफिन, मैंने कहा था बड़ी जीन होती है तो माइक्रो ही जाएगी, और उसके अंदर अगर किसी बच्चे को एंटीबॉडीज हैं AAV9 के
वेक्टर के, बिकॉज अगर मेरे को ऑलरेडी मेरे बॉडी में एंटीबॉडी है टू एडिनोवायरस 9, तो उसके अंदर जो जीन थेरेपी डाल रहे हैं मेरे को, वो तो मर ही जाएगी ना, मेरे एंटीबॉडी मार देगा, तो जीन थेरेपी वेस्ट है। तो वो पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूजन हो जाता है। प्लस एक्सॉन 8-9 एक्सक्लूजन हो रहा है बिकॉज जो जीन थेरेपी वर्क कर रही है उसका हिंज 8 और 9 एक्सॉन पे है। अगर एक्सॉन 8 और 9 किसी बच्चे का डिलीटेड है तो उस पर जीन थेरेपी काम नहीं करती। कॉमन साइड इफेक्ट्स थोड़ा वॉमिटिंग, नोजिया, लिवर फंक्शंस का डिरेंजमेंट, ब्लड प्लेटलेट्स का कम होना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, हार्ट का ये ट्रोपोनाई, ये सारी चीजें हमने पेशेंट्स में देखी हैं। जीन थेरेपी मैंने 17 पेशेंट्स में दी है अभी तक, और SMA के पेशेंट्स में, ये वाला नहीं, तो उसमें भी सिमिलर है। वो AV9 वेक्टर सेम है, तो वेक्टर की साइड इफेक्ट्स होंगे ना, तो उनको हम स्टेरॉइड देते हैं एक दिन पहले से, गिविंग स्टेरॉइड्स फॉर अप टू 30 days आफ्टर दैट। तो इसके अंदर वही माइक्रोडिस्ट्रोफिन दे रहे हैं। इसमें जो स्टडीज हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, पर रीजनेबली लाइकली टू हैव अ क्लिनिकल बेनिफिट। तो उसकी एक सिंगल डोज है जो देनी है, और डेफ्लेज़ाकॉर्ड नहीं देनी, वो स्टेरॉइड देना एक दिन पहले। ये नहीं कि पहले डिफ्लेज़ाकॉर्ड नहीं मिल रहा हो, पहले डिफ्लेज़ाकॉर्ड मिल रहा है, स्टेरॉइड कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने कहा ना, मैंने 17 पेशेंट में अभी दे पाई हूँ वो जो जीन थेरेपी SMA में, उसमें एक दिन पहले से यू स्टार्ट गिविंग प्रेडनिसोलोन विच इज गिवन for 3 years or 30 days or more depending on the patient's response। क्योंकि सारे ही बच्चों में 17 में सबके ही लिवर एंजाइम्स रेज आए, और उसमें प्लेटलेट काउंट काफियों के कम आए, जिसमें से सिर्फ एक को प्लेटलेट इन्फ्यूजन देना पड़ा, बाकियों को नहीं। ट्रोपोनिन आई लेवल हार्ट के उन सभी में नहीं, सभी में नहीं, कुछ लोगों में हाई आए थे, लेकिन किसी को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमें स्टेरॉइड्स लंबे देने पड़ सकते हैं, और कुछ पेशेंट में हमने 6 months तक भी स्टेरॉइड दिए हैं। मैं SMA का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वेक्टर सेम है इसलिए वो प्रॉब्ली साइड इफेक्ट्स वेक्टर रिलेटेड है ना। तो इसका अभी थोड़े से ट्रायल, अभी प्रिलिमिनरी डेटा आया है कि दैट्स बेनिफिशियल, दैट इज व्हाई FDA हैज अप्रूव्ड। PTC वाला ट्रायल था एटेरोन का, जो मैंने बताया, हमारे 11 पेशेंट्स थे, उनको अभी चल रहा है, मतलब अभी उनके चल रहा था, अभी उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के थ्रू दे रहे हैं। वो ट्रायल खत्म हो गया, ओपन लेवल भी खत्म हो गया, 11 थे हमारे पास। एंड ये एटिप्लरसिन का एक ट्रायल चल रहा है सेरेप्टा का, जिसकी एनरोलमेंट हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई है। और साथ में डार्ट एक NGO है जिन्होंने एक ट्रायल बोला है, जो 45, 51, 53 का उसका अप्रूवल्स मिले हुए हैं, पर उन्होंने भी फंड अरेंज कर रहे हैं टू ट्रांसफर द मेडिसिन। तो जब भी ट्रांसफर होगा तो दैट विल बी स्टार्टेड। एंड सो देवर सम, हमने 18 पेशेंट्स को दिया है 3 months तक। उनको ना instructions from we had instructions to give them the treatment। तो 51, 45, 43 तीनों के पेशेंट्स के लिए हमने दिया था, उनके 50 लाख रुपीस उनको सैंक्शन हुआ था। तो जिनका भी उनका 2.5-3 महीना जितना भी होता था वो सब मिला है। नॉट मच चेंज वॉज एक्सपेक्टेड इन 3 months टाइम ऑल्सो, सो उनका कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंड we have to obviously understand कि suspicion early होना चाहिए, early diagnostic और holistic multidisciplinary management is important, and optimum treatment है, और ultimately genetic counseling is very important, and prenatal diagnosis जहाँ पे भी है, और सारे ऑप्शंस जो नए आ गए हैं और ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें अंदर काफी नए तरीके के स्टडीज में आ रहे हैं, जैसे DMD के अंदर भी, अब आप देखो, आपको DMD बात हो गई है, LGMD के ऊपर भी जीन थेरेपीज के ऊपर स्टडी चल रही है। फिर उसके बाद और भी जो ये कंजेनिटल मसल डिस्ट्रोफीज के लिए भी एक्सॉन स्किपिंग और स्प्लाइसिंग मॉडिफिकेशंस की स्टडी चल रही है। EDMD का जो है एमरीज ड्राइवर है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वेरिएंट है उसका लैमिनिन, उसके ऊपर स्टडीज चल रही है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके अंदर सम ऑफ देम आर वर्किंग ऑन वेरियस पाथवेज, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टडी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चल रही, उसकी कैंडिडेट्स जो ड्रग हैं उनके ऊपर ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। कुछ माइस मॉडल में ट्रायल्स चल रहे हैं, एनिमल मॉडल ही हैं मोस्टली जिनके ऊपर अभी भी एमरीज ड्राइवर्स के ऊपर स्टडी चल रही है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑल एनिमल मॉडल वंस स्टडीज विच आर ऑन। लिम्ब गर्डल में देखेंगे तो फिर जो लिम्ब गर्डल 2B है, उसमें मैलमरॉन जो है एक मॉडिफाइड स्टेरॉइड, जो मैंने बोला स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट जो है, उसके ऊपर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। और जो इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल जो मैंने बताया था, स्टेम सेल्स में जीनोम एडिटिंग करके, उस पे क्रिस्पर टेक्निक को एक तरीका होता है जीनोम एडिटिंग का, वो माउस मॉडल में चल रहा है। और जीन थेरेपी भी जो है वो अल्फा बीटा गामा सार्कोग्लाइकन्स की ट्रायल्स
अर्ली ट्रायल्स, फेज 1 फेज 2 अर्ली होते हैं, उसमें वाले चल रहे हैं अभी। प्री क्लिनिकल स्टडीज में ऑब्वियसली द एनिमल्स के अंदर थेरेपीज जो मॉडिफाई कर रही हैं लिम्ब गर्डल में, उसमें एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में है, एक्सॉन स्किपिंग्स है, ये सब चल रहा है। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। रिकॉम्बिनेंट जो है उसके जो प्रोटीन्स हैं उनके मॉइस मॉडल्स में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब उसका चल रहा है एक्सप्लोरेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर LGMD। कोई भी सिस्टमैटिक स्टडी ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है सार्कोग्लाइकेनोपैथी और डिस्ट्रोग्लाइकेनोपैथी। ये इंपॉर्टेंट मेंशन करना, दे मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड। एंड दे हैव बीन रिपोर्ट्स की एनिमल मॉडल में स्टेरॉइड्स का कार्डियक टिश्यू में डिफेक्ट, डैमेजिंग इफेक्ट आया है लिम्ब गर्डल मसल डिस्ट्रोफी में। तो अभी डबल ब्लाइंड ट्रायल चल रहा है टू अंडरस्टैंड, डिफ्लेजिकॉर्टिक ट्रायल चल रहा है LGMD2I में। तो अभी पता नहीं है। तो मैंने बोला था ना वो डैमेज हो रहा है, ऑक्सीडेटेड फ्री रेडिकल्स वो सब, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर स्टडी चल रही है, और कुछ कोएंजाइम QK पे, और ऊपर ये सेम AAV9 जो वेक्टर है उसकी जीन थेरेपी के लिए भी अर्ली स्टेजेस के माइस मॉडल में ट्रायल चल रहे हैं। और जो एक्सॉन स्किपिंग का है सेम प्रिंसिपल लागू होता है, वो भी एनिमल लॉट में सारा LGMD पे चल रहा है। पर हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है स्टेरॉइड्स, और कुछ कुछ केसेस में हार्म हो सकती है। एंड LGMD2I का एक स्टडी अभी चल रहा है, सो वील वेट फॉर इट। सो दिस इज द वेक्टर एंड जेनेटिक जो जीन थेरेपी के चीजें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है राइट नाउ। फेशियल स्कैपुलर ह्यूमरल डिस्ट्रोफी है, उसके लिए भी जीन थेरेपी का और ASO सेम जो एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो बात हो रही थी जो एक्सॉन स्किपिंग में यूज होते हैं, वो सेम चीज पे स्टडीज चल रही हैं। दवाइयों के नाम है जिनके ऊपर स्टडी चली जा रही है, तो अभी इनिशियल स्टेजेस में है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी एक और किस्म की मसल डिस्ट्रोफी है जिसके अंदर भी ऐसे स्टडीज चल रही हैं। और आजकल एक्सॉन स्किपिंग जो है सेम प्रिंसिपल है। ये बताना चाहूंगी जब प्रिंसिपल सेम है, जो ये वाली चीजें अगर इंडिया में आ गई तो वो सारी ASOs होंगे, तो दैट कैन इफेक्ट सो मेनी मसल डिस्ट्रोफीज। अभी ये करंट लेटेस्ट पेपर है लैंसेट न्यूरोलॉजी का मार्च 2023 में, जिसके अंदर इन्होंने ये वाली में स्टडी में करा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देके। दे हैव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फेस बट इट इज अ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल है, उसमें दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड they are trying to understand for this congenital muscle myotonic dystrophies के अंदर। So this medicine they are doing Baliprofen, तो इसके ऊपर भी चल रहा है। एंड कंजेनिटल मसल डिस्ट्रोफी वो होता है जो लैमिनिन से रिलेटेड होती है, उसमें जो मैंने कहा ना ऑनगोइंग डैमेज होता है, जो खा जाता है वो एंटी अपोप्टोटिक, मतलब जो खा रहे हैं मसल सेल्स उनको खाना बंद करने के लिए डिफरेंट दवाइयां जो है ओमेगा पिल, साइक्लोस्पोरिन उनके ऊपर चल रहा है, डाइट के ऊपर चल रहा है। और एक साइक्लोस्पोरिन ये है उसका कुछ ट्रीटमेंट करके देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डैमेज होना कम हो, फाइब्रोसिस कम हो जाए, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाए ताकि ऑनगोइंग डैमेज ना हो। एक्सॉन स्किपिंग का सेम सिचुएशन चल रहा है, जीन रिप्लेसमेंट है, ये सारी चीजों पे स्टडी, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल आर ऑल द सेम। तो वंस एनी एडवांसमेंट कम्स इन वन पर्टिकुलर वन, तो दिस लाइकली दैट द एडवांसमेंट विल कम इन अदर्स। तो जीन थेरेपी जो है वो चल रहा है, वो DMD के अंदर है, LGMD में है, सारी की स्टडी चली रही है। साथ में इम्पोर्टेंट है हमारे को, मैंने जो पहले बताया कि जल्दी पकड़ना है और होलिस्टिकली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से देखना है और इनका ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करना है। और अगर एक फैमिली में एक बच्चे को सेम बीमारी है, दूसरा बच्चा को ये पैदा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हमारा सिस्टम फेलियर है। तो जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक जो अभी रिसर्च इनकरेज हो रही है इंडिया में, तो उससे हिसाब से इट विल बी इम्पोर्टेंट कि सारे इंडिया में बनने लगे। सम इम्पोर्टेंट इश्यूज इज hope is a powerful emotion and incredibly positive, but it should never be used as an excuse for shortcuts in the pursuit of good quality of research for benefit of children. harm नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे को। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रायल्स में पार्ट लें, ट्रायल्स इंकरेज करें। पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए मटेरियल देना चाहिए। तो हमारा वेबसाइट है www.pedneuroaims.org, उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, तो 3 बार WPED पीडियाट्रिक्स NEURO फॉर न्यूरो aims.org में पेरेंट्स कॉर्नर में पेरेंट इन्फॉर्मेशन मटेरियल है बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी के लिए। तो वो आप लोगों के DMD SMA के ऊपर भी है। और ये है QR कोड जो लिंक फॉर ऑल वेबिनार्स है जो हुए थे लास्ट ईयर, और जिसमें मैंने बताया 128 पैनलिस्ट थे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्कस ऑन द फाइनेंशियल एडवोकेसी ऑफ रेयर डिजीज। आवर फोकस वाज ओनली DMD एंड SMA।
So that was something, and इसका भी QR code आपको दे देंगे. So there were 20 of them, including parent counseling and coping strategies. Parents को भी शुरू से guidance मिलनी चाहिए and support मिलना चाहिए. So it was covering on all these topics, and very important in that. And this is the QR code, for the book. The report का QR code है. This was launched this year, Rare Disease Day में by our director. And so this is the QR code for all the webinars, and this is the QR code for the book. So then I think important to understand. और जो pediatricians को diagnose करने के लिए हम लोगों ने टूल बनाया है जिससे पता चल सकता है पीड न्यूरोएम्स डायग्नोस्टिक्स में कि न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट वाला टूल है, जिसमें कोई बच्चा आ रहा है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ केयर क्लिनिशियन जो भी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में बता सके कि इस टूल से कि उसको न्यूरो मसल डिसऑर्डर है कि सीपी है क्या है. तो दैट इज समथिंग टू हेल्प. एंड आरबीएसके के थ्रू गवर्नमेंट ये सारे टूल्स यूज कर रहे हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू बी एबल टू डायग्नोज. तो और साथ में प्रेप उनको हम ट्रेनिंग, साथ ये जो सेम वेबसाइट है उससे हम डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए लर्निंग मॉड्यूल्स हैं और बीमारियों के बना रहे हैं, और नेशनल रजिस्ट्री बना रहे हैं सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए. हमने नेटवर्क एक SMA का बनाया है और प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप वर्किंग इन SMA. मे बी वी कैन मेक वन फॉर DMD एज वेल. एंड सो बेसिकली एज आई ऑलरेडी मेंशन वे मेकिंग, और ये मैंने आपको बोला था पिरामिड का बेस को पेरिफेरी में ले जाना बहुत जरूरी है, साथ मिल्टेनियसली ऊपर ले जाना भी बहुत जरूरी है, सो दैट वट एवर इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड शुड बी ब्रॉट टू आवर पेशेंट्स एंड टू द पेरिफेरी टू ऑल. दिस इज आवर एम्स वेयर आई बीन देयर फॉर लास्ट 34 years. हमारा फाउंडेशन डे पे था और ये ऑटिज्म के लिए हमने उसको ब्लू किया था. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज जो हमारे को अपॉर्चुनिटी देते हैं हमको ट्रीट करने के लिए, उनको में फेथ रख के ट्रायल्स में पार्ट लेते हैं. So this is my team which we work. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Gulati. I have a few questions. मैं chat में से मैंने summarize किए हैं, तो Sure. मैं I will ask some of those questions. और फिर Sure. बाद में maybe we can ask some of the parents or some of the participants to ask questions directly. तो एक तो मैं share करूं, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तो आपको क्वेश्चन दिख भी जाएंगे. एक सेकेंड. चैट से ही मैंने काफी लिए हैं. तो हाउ कैन पेशेंट्स एनरोल इन क्लिनिकल ट्रायल्स? See, I mean, when you're participating in trials, the trials cannot be put on social media. So, but that is something important from the trial point of view. ताकि ये होता है कि आपको कहीं दिखा रहे होते हो, you have to be in touch with your doctor who is seeing. कोई जो बच्चे हैं तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे या वो दिखा रहे होंगे पीडियाट्रिशियंस को, जो एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे. तो बेसिकली फॉलोअप तो अल्टीमेटली न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक या एडल्ट को ही दिखा रहे होंगे ना फॉलोअप में लॉन्ग टर्म. सो दे शुड बी इन टच. कभी कोई ट्रायल आता है तो जस्ट वी टेल इन आवर नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप्स टू आवर पीपल कलीग्स. एंड आई थिंक जब अभी नोवार्टिस का भी SMA का भी अभी आया है 2 years 0 to 2 years के लिए अप्रूव था FDA का उनका जोल्जेस्मा, ये सेम जीन थेरेपी, और 2 to 18 का ट्रायल आया था. तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला था, उसमें जस्ट कि इस बीमारी पे है, तो उससे हमारे को आया है. और वैसे भी अभी भी आई एम टेलिंग यू वी आर गेटिंग रेफरल्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. जिनका भी जो आता है तो हम वो डेटाबेस में डाल रहे हैं. साथ में अगर आपके जो भी पास में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहां पे आप जाके दिखाइए, एंड अगर आप उनको बोलेंगे तो दे विल रीच आउट. अगर उनके पास वो नहीं है दे विल रीच आउट टू कोलीग्स, बिकॉज पेशेंट्स आर रेफर्ड टू मी राउंड द ईयर फॉर ऑल दीज पेशेंट्स. तो मेरा ये है, और ये आपका जो एसोसिएशंस हैं दे कैन आल्सो मेक द लिस्ट of the patients and convey, so that whenever we are going to have some more new trials coming up, because they have come and asked us कि होता है ना वो ट्रायल के लिए पहले वो स्क्रीन करते हैं ना वो साइट वाइट, तो अभी कुछ नए आ रहे हैं DMD के. और अच्छा, 2-3 और क्वेश्चन रिलेटेड हैं तो मैं सब क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता हूँ. मेरे ख्याल से आंसर सिमिलर है. What is the difference between myopathy and muscular dystrophy? Does it matter how many axons are missing? And is there any research on mitochondrial myopathy? तो ये थोड़ा mechanism of action वाले हैं. ओके. मायोपैथी में क्या होता है कि जो
जो उसका एक होता है ना स्ट्रक्चर, जैसे किसी का नाक नक्शा होता है फेस का, थोड़ा सा नोज इज डिफरेंट थोड़ा, तो इसलिए वो मायोपैथी में द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। जो उसका मसल का स्ट्रक्चर है उसमें जेनेटिक कारण से डिफेक्ट है, राइट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू प्रेजेंट एज अ मायोपैथी। और मसल डिस्ट्रोफी में मैंने जो आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि उसके अंदर वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जो डिस्ट्रोफिन उधर थी, लेकिन वो बाकी वालों सब में एमरिन एमरीड्राइफस वाले में उसके अंदर लैमिनिन है, देन यू हैव सार्कोग्लाइकेंस एंड ऑल दैट, वो सारा एलजीएमडीज का वो अलग है। तो वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, साथ में ऑनगोइंग डैमेज हो रहा है। जिनमें ऑनगोइंग कंटिन्यूअस डैमेज हो रहा है वो मसल डिस्ट्रोफीज हैं, बिकॉज उसमें उसको फाइब्रोसिस और वो सब कॉज कर रहा है। तो दैट इज हाउ द मायोपैथी एंड डिस्ट्रोफी अलग है। नेक्स्ट सवाल क्या था सर? ये माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी क्या होता है? एक वन ऑफ द काइंड्स ऑफ मायोपैथीज इज माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। उसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, या तो आपका जो डिफेक्ट होता है या तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में होगा या न्यूक्लियर जीनोम में होता। एक्चुअली अच्छा। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल थोड़ा सा एक भिन्न है। एक्चुअली हमारे पास ना सेल्स के अंदर हमारे हर सेल में माइटोकॉन्ड्रियल भी होते हैं। तो जो जीनोम होता है या तो माइटोकॉन्ड्रियल में भी होता है और न्यूक्लियस होता है। हर सेल में न्यूक्लियस होता है जिसमें जीनोम होता है, जिसके अंदर सब जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में भी हो सकता है या न्यूक्लियर जीनोम में भी हो सकता है। उसके ऊपर भी स्टडीज आर गोइंग ऑन अभी। तो उसके भी उसके अंदर लॉट ऑफ जो भी है उसके लिए ऐसे ही जो सपोर्टिव थेरेपीज जो बताया था, जैसे कोएंजाइम्स एंड ऑल दैट जैसे बताया ना, वैसे वो काफी उनके अंदर भी सपोर्टिव थेरेपीज वगैरह चल रहा है। रिसर्च इज स्टिल ऑन ऑन अभी डेफिनेटिव ऐसे कुछ उसमें आया नहीं है बढ़ के। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं 3 टॉपिक्स पे। एक तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है स्टीरॉइड्स का, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। दूसरा जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में आपने बहुत एक्सप्लेन किया अच्छे से। और तीसरा जीन थेरेपी और नए थेरेपीज के बारे में एक्सप्लेन किया। डॉक्टर चिरमुले की बेसिकली लोगों के ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि स्टेरॉइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं तो कंटिन्यू करें कि ना करें। वेरी क्लियरली डॉक्टर शेफाली हैज टोल्ड कि स्टेरॉइड्स जो नहीं ले रहे उनको चालू करना चाहिए, और जो ऑलरेडी ले रहे हैं वो अपने चलाते रहें स्टेरॉइड्स, उनको बंद ना करें। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनमें प्रोटोकॉल का मैंडेट है स्टेरॉइड्स लेना। तो प्लीज वो इसका आंसर यही है डॉक्टर शेफाली गुलाटी के पास। नहीं हाँ, नहीं एक तो और नहीं नहीं मैम हाँ, वन मोर थिंग, इट्स नॉट ओनली फॉर ट्रायल, इट इज दैट इट इज गोइंग टू जो प्रिवेंट द डैमेज, डैमेज आल्सो हाँ, ना। हाँ, हाँ, व्हिच मैं दे उसी हैव पे टू आ रही, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ उसी पे हाँ आ रही हाँ। थी मैं आगे, कि जो डैमेज हम नॉट ओनली एम्बुलेटरी और नॉन एम्बुलेटरी का इशू नहीं है, इसमें बाकी चीजें भी, जैसे मैम ने बड़ी क्लियरली बताया अपनी प्रेजेंटेशन में, कि बाकी चीजें भी जो डैमेज होने से रुक रही हैं अगर आप स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं तो प्लीज मेक इट क्लियर। हाँ, दूसरी चीज ये थी मैम कि हमने अभी क्लियर कर दिया कि जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें डेफिनेटली बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी काफी चीजों में इंटरनेशनली पर मैजिकल नहीं है, पर मैम मैजिकल क्योर्स नहीं है। हाँ, एंड आई medical मीन cures द नहीं। डिफेक्ट जो दिख रहा है कि जो रिटार्डेशन है, प्रोग्रेशन की स्पीड डिक्लाइन कम हो रही है, लेकिन डिक्लाइन हो रही है। मतलब यू गेट माय पॉइंट? तो मैम आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और सबके लिए गाइडेंस भी अपन चाहते हैं, कि पैरेलली जैसी ये चीजें तो ठीक है, ये तो लेना ही है, और ट्रीटमेंट्स को देखना है, आने वाली चीजों को देखना है, अपना प्रेजेंट स्टेटस को बना के रखना है। उसके लिए आप कैसे गाइड करेंगी, क्या गाइड करेंगी कि रिहैबिलिटेशन के लिए और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? हाँ, ऐसे मेंशन टू यू ना कि वो पूरा होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिन न्यूट्रिशन को देखोगे, पेरेंट्स से कोपिंग स्ट्रेटेजीज को देख लोगे, ओटी पीटी रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होंगी। उसके बाद वे डू नॉट बाद में जब कार्डियक फंक्शन देखना है इनिशियली 2 ईयरली, उसके बाद ईयरली रेस्पिरेटरी देखना ईयरली। जब भी इशू होगा कि इफ यू नीड एडवांस हो रहा है तो हार्ट के लिए हम इनहेलेप्रिल देते हैं। बाद में आपको नाइट टाइम वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली and that should be encouraged. And one more thing I forgot to tell, that we have to give vaccination before we start steroids. तो उसके अंदर pneumococcal vaccine होता है, and influenza vaccines to be given and varicella to be given before we start on steroids. That would be important. तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबके लिए है। तो मैं लिख देता हूँ, और ये जो स्लाइड मैं अभी बना रहा हूँ ये सबको भेज देते हैं। तो टेक वैक्सीन्स,
Or Shefali ji, maybe we can write about 10 things over here that people should do. We need to give them vaccines. Pneumococcal vaccines have to be given. Influenza vaccines and varicella they have to be given before steroids. On steroids, you don't give these vaccines. The take will not be there. So that, and you know, sometimes when people come for long duration steroids and then you're not given vaccines, then we have to actually taper off steroids and stop and then decide. So it doesn't have to be decided. So they will not start and stop on their own, but the vaccines are to be given before starting steroids. And sometimes when we decide to give them vaccines and then we, taper off steroids over 2-3 months, then give vaccine, then you wait for 2-3 months and then start. Because you have to give without steroids, there should be time for the vaccines to be taken up. And then you need to do regular physiotherapy and occupational therapy and the respiratory training exercises. You should use the incentive spirometer and all. You have to have and you have to have a pulmonary function test done regularly, cardiac functions done regularly. Then you may, when more than 10 years, you may like to do it annually, and may like to give them some AC inhibitors like enalapril. You will need to do a calcium phosphate, vitamin D levels, and bone mineral density at least annually. And because we may like to supplement because they are not going out. And very important is diet and nutrition. And because everything we say is related to the steroid. It is not related to steroid per se. Everybody is taking steroids, but everybody doesn't. Out of 100 children on steroids, yes, steroid can cause weight gain, but we have to ensure, because these children are not having too much activity. So easily we have to ensure that we give a nutritious, balanced diet and less on fats and all that. So diet, nutrition, and then giving them psychological counseling, because we have seen, these children also have some of them have hyperactivity, some of them have anxiety and some learning problems. And, about 20 to 30% may have some cognitive impairment as well. So psychological care for them, as well as coping strategies for their family. And sir, on the website www.peedneuroaims.org, we have DMD booklets in English and Hindi, which you can download and send. And somebody from from one support group from Hyderabad, they have already translated into Telugu and Kannada and all, and also translated Bangla. I have the Telugu version, but I don't have any other versions with me. They have written to me, but that English Hindi you can download from our website, and that can be circulated. www.peedneuroaims.org. Yeah, www.peedneuroaims.org. Yeah. यही है ना? Yeah. तो ये जो स्लाइड है मैं सबको भेज दूंगा, ताकि things to do सबको so people don't have to ask the same questions again and again. Thank you. Yeah. For family. Yeah. Pranayam, I don't know. Actually, I don't know, but you can do it. I mean, it's okay. हाँ, लेकिन संजना जी काफी कराती है. Oh, that's okay, but don't tell from my side. I'm not saying I must be good, but I mean, I myself don't know. So from my side, you can't say, because I myself don't know. I said that, that's what I mean. And because what she's doing is a wonderful job, but then she's expert to tell that. I don't know about it, but that's what I meant. हाँ, नहीं. तो पूजा जी, आपको क्वेश्चन था? पूछिए. मुझे बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है. मेरी 2 डॉटर्स हैं. नेचुरली दे आर कैरियर्स. तो कैरियर, अगर डॉटर है, कैरियर कोई लेडी है, तो उसके जो सन्स होंगे, उनके मस्कुलर डिस्ट्रोफी से अफेक्ट होने के कितने % चांसेस हैं? 1. और क्या कैरियर कभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नंबर 2. ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. Yes, sir. I had mentioned it in my presentation that you may have manifesting carriers, and out of the 845 dystrophinopathies, मैंने बताया था that we had 2 which were female manifest carriers. Rest all were males. In that data of our 6 years, है ना? तो manifest हो सकता है because females have 2 X chromosomes. If one of the X chromosomes gets inactivated, that is aware, and there are other some genetic formulation. The way you can have that, you may have a manifestation. You may have an XO. दूसरा वाला नहीं होता, कोई और problem होती है Turners की, और या तो वो X inactivate हो जाता है. So like that, you can have a manifest female carrier of DMD definitely, and see, if you have an X-linked hair, so the child, the daughter is a carrier. You have seen already. You've done the MLPM. No, I have not gone.
I No, have don't approached them. assume, please. I think you should know. I think one has to do the carrier screenings, and because sometimes what happens is sometimes these are de novo mutations, so we have to understand. So, but yes, obviously, classically speaking, so if you have a X-linked thing, and the sisters may have if they are carriers, suppose they are carriers in that situation, then in that situation they can transmit them to their children, but then it has to be to the boys. Yes, the boys can be affected, but then that would be half of them, na? Because there are two X. One of the X is carrier, so there's 50% chance of the mother is giving the X, right? So half of the times, 50% chance of giving it to the son. But then all this is there. We should not go in speculation. We should do the carrier screening. And what happens is, let me tell you, because of stigma attached, people just keep quiet. People don't do that. But let me tell you, we have to move on. And I have to think कि बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है, then who is responsible to have another child born with the same problem? So in the what happens is in Indian society, you don't do a carrier screening for girls कि उनकी शादी कैसे होगी. या शादी तो आप अभी करा देते हो, लेकिन शादी के बाद अगर बच्चा इफेक्टेड हो गया तो उनकी लाइफ तब क्या होगी? एंड देन दिल से कि तुम्हारे इसके मामा जी को था एंड ऑल दैट, दे विल पुट दैट थिंग अराउंड, एंड देन इफ दे leave the daughter with the child in your house, what are you going to do about it? So what I mean to say is we have to be an open society. We have to understand they should be, what is preventable is preventable. One has to stand up. अगर हम पहले we have to get your daughter married to somebody who is more understanding and educated. हाँ, जो अभी नहीं समझेगा बाद में क्या समझेगा? And बाद में you will like to give some support, so, and I think one has to upfront go about it. It's not, I mean, hiding the facts are never right. And if the other person doesn't understand and rejects the marriage proposal, better to do. They are not worthy to understand that. That's good. सही बात है, बहुत सही कहा आपने. संजय, आपको कुछ कहना है? यही मैं कह रही थी कि इस वक्त सबको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझने वाला कि जो आगे आने वाली जनरेशन्स में हम बीमारी को हर हाल में रोकें, पूरी कैरियर जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं और अपनी फैमिलीज में आगे आने वाली प्रोबेबिलिटीज को देखकर प्लीज तभी आगे बच्चे आने दें. नहीं तो प्लीज, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम बीमारी को आगे जनरेशन्स में आने से रोकें. अभी अपने हाथ में ये चीज पूरी तरह से है. नहीं संजना, ये है ना, हमें सोचना है ना, हाइड नहीं करना है. हाइड करने से आपको लग रहा है कि भाई वो शादी में रुकावट आई है. भैया अगर उसमें कुछ बाद में प्रॉब्लम हो गई, एक और बच्चा हो गया, तो उसमें पूरी आप लाइफ खराब हो रही. इंस्टेड कैरियर स्क्रीनिंग कर रहे हो डजंट मीन कि कुछ है. तो देन यू आर सेइंग कि वो आप सब, जब कैरियर स्क्रीनिंग हो जाएगी, कैरियर भी है, तो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो टेस्ट कर दिया जाएगा ना, तो उनकी तो नॉर्मल जाके आगे चलेगी. तो साइंस बढ़ गई है, साइंस की तरक्की को एक्सेप्ट करने के लिए माइंडसेट बदलना पड़ेगा. सही है, बहुत सही कहा आपने. सो संजना जी, थोड़ा सा आप समराइज कर देंगे अभी तक का रजिस्ट्री के बारे में? हाँ, यस मैम. चलो, ये हम डॉक्टर शेफाली गुलाटी के साथ अभी लेंगे. दैट विल सेंड यू अ फॉर्म जिसमें की डिस्ट्रोफीज है उनके अलग से करेंगे. एंड देन जो हम कह रहे हैं कि दिस विल बी अ काइंड ऑफ पिरामिड कि वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, किस चीज पे किस तरह से काम हो रहा है वो, और नीचे पेरिफेरी में क्या काम होने की जरूरत है, किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें फिर आ जाएंगी. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट. डॉक्टर शेफाली, एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न हमारा सभी का रहता है, और एक्चुअली हम लोग जितने लोगों को यहाँ रिसीव करते हैं 99% लोगों का अभी तक भी ये रहता है जो तो अवेयर है. जो लोग किसी सेंटर पे होके अपना डायग्नोसिस लेकर आ गए, उनका तो एक बात है, वो तो बिल्कुल ठीक है, दे नो हाउ टू मैनेज द डिजीज, उनको पता है कि किस तरह से आगे चलना है. बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शुरू में सही गाइडेंस नहीं मिल पाया किसी वजह से हेल्थ सेंटर्स पे या कहीं पर. तो क्या हम क्या तरीका अपनाएं या किस तरह से हम आगे चलें कि एक बिगर अवेयरनेस अमंगस्ट द फिजिशियंस, हमारी जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनमें और अच्छे से अवेयरनेस जा सके एज फार एज मस्कुलर डिस्ट्रोफीज आर कंसर्न. तो आप प्लीज हमें गाइड कीजिए कि वी कैन हाउ शुड वी टेक इट अप. Yeah, the guidelines which I told you, we're trying to make. अभी भी
Yeah, we had made recommendations for the government. We're trying to make the guidelines for pediatricians, and we have not circulated it right now. We are in the process of making. तो वो हो जाएगा, then we can send across. And currently, आप parents को muscle dystrophy का जो booklet है, if you want, I can download from the website and send you. Can be sent. I mean, you can share. Telugu one also I had. There, some other association had converted into Telugu, and we can just share, and you can share, and they can see also from the website. You can also download and see. I think minimum that much information should be available. See, because what happens is, why I did this website and all come. Website has a parents corner because I cannot, as a individual sitting in AIMS, control awareness to others. So that is why we made areas in which the parents, the parents to be empowered. And I did not have that much of funds to translate into other regional language, so I have done only in English and Hindi. So they are available, and I urge कि लोग download करके दें. English और Hindi है, which will cover most of the people. So that can be started for starters basically. Thank you, Shefali ji. आप we can send it to Sanjana, and we'll try to get it translated in other languages. We also have, yes, हमारे पास ये बुकलेट है, हम अभी आज ही सबके साथ सर्कुलेट कर लेंगे, और जो लोग अपने अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, है ना, तो वो अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा के इसको डिसेमिनेट करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे तक जा सकती है. Thank you. पर वो अगर ट्रांसलेट करेंगे, सर, 1 second, then they should send a copy. Sanjana ji, if they are going to translate, they have to tell you that you're translating, and you inform me, and they send a copy back, so that we do a reverse translation ki matlab is a meaning is being maintained or not. Yeah, that will be important. Yeah. तो अभी तक questions have been generally genetic testing, then there has been use of steroids, third is gene therapy, fourth is genetic counseling, fifth is registry. ये 5 मैं summarize करूंगा बाद में. डॉक्टर चिरमुले, आई बिलीव कि हमें अभी वाइंड अप करना चाहिए, क्वेश्चंस हैं, और जो 2 घंटे ऑलरेडी मैम मेंशन कर चुकी हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, उन्हीं में से आंसर्स हैं. हम रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोग वापस उसको ध्यान से सुनिए. यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स, आपको सभी को यहीं पर आंसर्स मिल जाएंगे. सो संजना जी, आप क्लोज कर दीजिए थैंक यू करके. थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली. आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आज बहुत एजुकेटिव सेशन रहा होगा, और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के जो आ रहे थे, उनके सभी आंसर्स डॉक्टर शेफाली ने बड़ी क्लियरली अपनी प्रेजेंटेशन के Sanjana ji, there was Mr. Kaushal who had some question, na? One more, if he's still around, can ask him, because then I'll feel guilty that we didn't answer. Mr. Kaushal from Hyderabad, somebody, you were asking a question, then if Mr. Kaushal बहुत सारे question हैं. Actually, I'm going to summarize all the questions that are there in the chat. Yeah, so that's fine. And I will send it to you, Shefali, or maybe we can get responses by email or something. One question that I see is Dr. Ghosh. Akra Shubhra Ghosh has done a presentation in the past in YouTube. तो वो हम लोग आपको वो लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने किया है. So anyway, so thank you, Sanjana. Thank you. Obviously, everything that you are doing, we are very grateful for all the work that you do. Thank you to all the people who have joined today. More than 120 people joined from Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Bengal, Uttar Pradesh, and of course there may be many more. So thank you from everybody from India who have called in, and thank you very much, Shefali ji, for giving such a very, very insightful information about muscular dystrophy on this Muscular Dystrophy Month, Awareness Month. Thank you again very much. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much. Bye, everyone. We'll be in touch, and we'll make a very soon. We'll connect, and we'll make a register. I mean, thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. Bye.